So, Hari Om to all the students of class 6. Let us study chapter 2. That is a part of your poetry section. It's a poetry part. It deals with the flowers, daffodils, written by William Wordsworth, a very renowned writer. He is very famous for writing a poem. Okay. विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है डैफोडिल्स के बारे में. व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन टू द रीडर्स, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे द मैसेज टू रीडर्स अबाउट डैफोडिल्स, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट डैफोडिल्स, व्हाट डज ही थॉट, व्हाट अबाउट हिज थॉट अबाउट डैफोडिल्स. ओके, डैफोडिल्स के हेल्प से ये रीडर्स को क्या बतलाना चाहते हैं, डैफोडिल्स से क्या समझाना चाहते हैं. डू यू लाइक फ्लावर्स. देखो डैफोडिल्स क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ. इट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, इट इज द नेम ऑफ ए फ्लावर. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ए फिगर, यू आर ऑन द बुक, you can see daffodils. There are so many daffodils in the garden, beside the lake, beneath the tree. There are so many daffodils you can see. These are the daffodils. These okay. These are dancing in the waves. All the daffodils are dancing in the waves. You can see. All these are daffodils are dancing in a bridge. You can see here. So daffodils. Do you like flowers? Which is your favorite flower? How do you feel when you see beautiful flowers around yourself? क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद हैं? कौन से तुम्हारे सबसे पसंदीदा फ्लावर हैं? कैसा तुम अनुभव करते हो जब तुम्हारे इर्द गिर्द तुम अपने इर्द गिर्द सुंदर सुंदर फूलों को देखते हो, पाते हो? तुम कैसा फील करते हो? Now let's start study the stanzas of this poem. I wandered lonely as a cloud that floats an eye over the wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as a star that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. The wave beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought, what will the show to me head about? For oft, when on my couch I lie, I back and tore in pensive mood. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. You know, my rhythmic style of study this poem. And how do you learn? How do you read? What is the way of reading the stanzas of the poem? You learn right now. You have learned right now. How would you study? How do you study stanzas of any poem? You just capture the rhythmic. You just capture the metaphor points of every stanzas. Here we can see what is a stanzas line. गज़ल से शेर्स का आप लोग जैसे आप लोग माइक पे बोलते हो, गज़ल शेर्स का प्रोनाउंसिएशन करते हो, गीत गाते हो, उसी प्रकार से पढ़ने होते हैं पोएम के स्टैंजर्स को. जैसे कि देखो, एंडिंग विद डी, हियर एंडिंग विद एस, हियर एंडिंग विद डे. ठीक है, तो यहाँ आप ये सेंटेंस को पढ़ना और एंड यहाँ पे होना, बीच में आप कॉमा लगा हुआ है यानी कि अल्प विराम, यहाँ आप केवल सांस लोगे, थोड़े क्षण के लिए रोकोगे, लेकिन एंड यहाँ पे हो गए. इन दिस वे देखो, डी के लिए यहाँ डी एंड हो रहा है और इस एस के लिए यहाँ एस एंड हो रहा है. ठीक है. I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. ठीक है, ये ध्यान रखना होता है. Continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Way. Milky Way, in this way you will finish here where there is comma, and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. In this way, you got it? Here ending with way, but here is comma.
बट देयर इज सेमीकोलन, यानी देयर फाइनल एंडिंग। आप यहाँ पूरा सांस खत्म करोगे, यहाँ आधा सांस खत्म करोगे, यहाँ कम पूरा सांस अपने खत्म करोगे। नाउ अगेन 10,000 saw I at a glance, 10,000 saw I at a glance, in this way glance कॉमा मतलब अल्प विराम हुआ, आपके पढ़ने का अल्प विराम यहाँ हुआ। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance। आप समझ रहे हैं, आपके लहजा पर डिपेंड करता है। पोएम को पढ़ने का एक लहजा होता है, एक वे होता है, और डिपेंड करता है रिदम, स्टैंजाज में जो रिदम दिए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। मेटाफोर्स कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगेन द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे outdid the sparkling waves in glee। Now ye, where should we in we? Gay, nothing there is. The wave beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company। Here is a, here is a. The last pronunciation of the sentence of this stanza is e. Here in the wave beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company। Here is E, here is E. In this way you can read, okay? This is the style of reading a stanza of poem. Again, I am telling you. Again, I gazed and gazed, but little thought, what will the show to me about? I gazed and gazed, but little thought, what will the show to me had brought? Here is thought and it is brought. And this way, you got it? Chaliye. Now we are going to learn the meaning of all these stanzas, what these stanzas are concluding about. I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills. Wandered means, moving here and there without of any aim. Aimlessly you are walking here and there, you are wandering here and there। आप बिना किसी मकसद के इधर उधर मंडरा रहे हो, उसे कहते हैं वांडर। तो मैं भी भटक रहा था, मैं भी भटका बिना किसी उद्देश्य का, मैं अकेला था एक बादलों की भांति जो किसी ऊंचाई पर, किसी ऊंचे घाटियों और पहाड़ियों पर, उन बादलों के बाद उन तैरते हुए बादलों की तरह मैं भी अकेला भटक रहा था भी नहीं होगा, यहाँ वांडर्ड है, दैट इज V2। मैं भी भटका कहेंगे हम, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऊंची पहाड़ियों और ऊंची घाटियों और ऊंची पहाड़ियों पर जैसे कोई बादल तैरता हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अकेला भटका इधर से उधर। और ये सब करते हुए मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा, आई सॉ ए क्राउड, मैंने देखा एक भीड़ को, ए होस्ट को, एक समुदायों को। क्या चीज का समुदाय? गोल्डन डैफोडिल्स। और ये सब भटकते हुए मेरी नजर पड़ी एक सुनहरे डैफोडिल्स के एक फ्लावर, सुनहरे डैफोडिल्स की तरफ मेरी सुनहरे डैफोडिल्स के एक बहुत बड़े समुदायों की तरफ, एक बहुत बड़े झुंड की तरफ, भीड़ की तरफ मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा। कहाँ पर? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। पेड़ के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे और बिसाइड मतलब बगल में, झील के बगल में और पेड़ के नीचे वे लोग मंद मंद पावन हवा में फड़फड़ाते और नृत्य करते हुए मैंने उन्हें देखा। किसे? डैफोडिल्स को, जो कि ब्रिज का मतलब होता है मंद मंद हवाएं, जो धीमी धीमी चलती हवाएं होती हैं उन्हें ब्रिज कहते हैं। उन धीमी धीमी चलती हुई हवाओं में फड़फड़ाते हुए और नृत्य करते हुए, अपने पंखों को यूं ही फड़फड़ाते और लहराते हुए एवं नृत्य करते हुए मैंने उन्हें देखा। कहाँ? झील के बगल में और पेड़ के नीचे। Continuous as the star that shine and twinkling on the Milky Way। You know Milky Way? Milky Way is our galaxy in which we live। इस Milky Way गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं जो लगातार चमकते रहते हैं, उनकी भांति वे भी चमक रहे थे, वो डैफोडिल्स भी चमक रहे थे। यहाँ पर डैफोडिल्स की तुलना की गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने डैफोडिल्स फ्लावर की तुलना मिल्की वे में मौजूद असंख्य तारों
लगातार निरंतर जो टिंकल करते रहने वाले तारों से तुलना की है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, किसी खाड़ी के मार्जिन यानी कि निकट पर यानी कि तट पर आप कह सकते हैं, मार्जिन ऑफ अ बे यानी कि बे खाड़ी के तकरीबन किनारे वाले भाग में कभी ना खत्म होने वाले एक लाइन, एक रेखा की भांति वे सारे डैफोडिल्स फ्लावर क्या थे, फैले हुए थे। 10,000 at a glance I saw at a glance, 10,000 saw I at a glance। at a glance मतलब होता है एक झलक में, एक झलक में मेरी निगाह पड़ी, एक झलक में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। वे सभी अपने सर को आगे की ओर फेंक रहे थे। आगे पीछे यूं ही फेंकना होता है ना, नृत्य, बिल्कुल एक नृत्य परफॉर्म करने की भांति, एक डांस को परफॉर्म करने के लिहाज से अपने हेड को आगे पीछे फेंकना होता है। Sprightly dance, sprightly means live dance. When you are going to perform a live, you are going to give a live dance. That was a live dance performing by the daffodils for William Wordsworth, for a writer, for the poet of this poem. That was a live dance performing by these daffodils. You can see here on the screen, on this image, there is a tossing of head of daffodils. Daffodils are tossing their heads, you know, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हेड को ये लोग फेंक रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना। तो पोएट ने इनके टॉसिंग हेड को कंपेयर कराया है स्प्राइटली डांसिंग, लाइव डांस से। दे आर परफॉर्मिंग ए लाइव डांसिंग, ओके। तो मैं भी एक झलक में 10,000 डैफोडिल्स को देखा। वो लोग अपने सर को फेंक रहे थे आगे पीछे, मानो जैसे कि वो लोग एक लाइव डांस परफॉर्म कर रहे हों। द वेव बिसाइड देम डांस्ड, उनके इर्द गिर्द जितने भी वेव्स हैं वो भी, द वेव बिसाइड देम डांस्ड, वो तरंगे, हवाओं के तरंगे, नृत्य, वो हवाओं की तरंगे भी नृत्य किए। लेकिन उनका जो नृत्य था, डैफोडिल्स का जो डांस था, वो उनसे काफी बढ़िया था। वेव से काफी बढ़िया डांस परफॉर्म कर रहे थे, किए थे कौन, डैफोडिल्स। द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, मतलब उन वेव्स के द्वारा जो डांस परफॉर्म हुआ उससे काफी बढ़िया डांस था डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स खुशी में, आनंद में, ग्ली का मतलब होता है एक्साइटमेंट, हाँ एक्साइटमेंट मतलब पूरे जोश में, उमंग में। डैफोडिल्स के द्वारा जो नृत्य हुआ वो काफी बढ़िया था। किसकी तुलना में, उनके इर्द गिर्द जो वेव्स डांस किए थे उनकी तुलना में डैफोडिल्स का नृत्य काफी बढ़िया था, क्योंकि वे लोग काफी उमंग उत्साह से लहरा रहे थे, काफी एक्साइटमेंट में थे डैफोडिल्स। A poet could not but be gay in such a jocund company. वो पोएट, यहाँ पे पोएट अपने बारे में कह रहे हैं, वो could not but be gay, हो नहीं सकते थे लेकिन गे हो गए थे, गे हो चुके हैं। could not but be gay in such a jocund company. Jocund means cheerful. इस चीयरफुल कंपनी में, इस आनंददायक वातावरण में कवि साहब हो नहीं सकते थे, परंतु हो गए। क्या हो गए, गे हो गए, मतलब दीवाना हो गए। समलैंगिक होता है गे का मतलब होता है एक बाबला से हो गए, एक बाबले से हो गए, बिल्कुल पागल की तरह हो गए, गे हो गए इस आनंददायक कंपनी में। अब पोएट साहब कहते हैं, आई गेज्ड एंड गेज्ड,